سیکنڈ کلاس کی کو ریلیف دینے کی جو بات ہو رہی ہے اس بجٹ میں، آپ کو لگتا ہے کہ پاسبلٹی ہے؟ دینا چاہیے، ہر صورت میں دینا چاہیے، ورنہ وہ چوری کریں گے، اور چوری کریں گے تو ملک کو زیادہ ڈیمیج کریں گے۔ ابھی آپ نے کارپوریٹ ٹیکس کا ذکر کیا، اس کی جو شرح تقریباً 55% تک چلی جاتی ہے، سپر ٹیکس الگ ہے، اس پر کچھ ہونا چاہیے؟ اگر آپ اس کا راستہ بنائیں گے، اگر آپ ٹیکس کی کلیکشن صحیح طرح، آپ ٹیکس کی حساب صحیح طرح بنائیں گے نا، تو یہ 55 نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ آپ نے جو 55 کیا ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ڈیویڈنڈ دیتے ہو تو پھر 15% ٹیکس ہے، پھر ڈیویڈنڈ کے اوپر بھی سپر ٹیکس ہے، تو 55 اور 60 اور 70 اور 70 کے اوپر 10% سپر ٹیکس آتا ہے، یہ 80 بن گیا۔ اور آپ جس کمپنی کو دیتے ہیں، ہولڈنگ کمپنی اگر آپ کی ہے، اس کو دیتے ہیں تو پھر وہ پیسے دیتی ہے، اس کو بھی ٹیکس ہے۔ ٹیکسیشن کا نظام پور ہے، صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سب کرنے کے باوجود ایف بی آر کے ہدف پورے نہیں ہوتے؟ میں اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ چند لوگوں کو فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان لوگوں کو فوکس نہیں کر رہے جو ٹیکس نہیں دے رہے، اور ٹیکس نہیں دینے والوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے آپ کو لوگوں کو ٹڑیاں نہیں دینی، لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لینے، لوگوں کو بولنا ہے کہ اگر آپ پاکستانی ہمارے پیسے ڈائریکٹ کھاتے ہیں تو کھانے دو، آپ بھی مڈل مین کے لیے راستہ ڈھونڈتے۔ لیکن عقیل صاحب، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ریٹیلرز پر جب ٹیکس لگانے کی بات کی جاتی ہے تو وہ ہڑتال کر دیتے ہیں، پھر وہ بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ مت لگاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کا کلیکشن میں کلیکٹ کرو تو مہنگا، اور ٹیکس کچھ نہیں ہوگا، اس کے اوپر کیا لے لو گے آپ؟ ریٹیلرز پر ٹیکس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میں کہتا ہوں کچھ نہیں ملے گا، جس نے دینا ہے اس نے دینا ہے۔ بہت سارے ریٹیلر جو کروڑوں روپے کماتے ہیں وہ دیتے ہیں ٹیکس، لیکن یہ وہ ریٹیلر شور مچاتے ہیں جن کی بیچاروں کی ہینڈ ٹو ماؤتھ انکم ہے یار۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنے پاور کٹ کریں ایف بی آر کے، 1 سال تو کر سکتے ہیں نا ہمارے کہنے پہ بھائی، ہم پچھلے 20 سال سے چیخے مار رہے ہیں، 20 سال نہیں تو 18 سال تو ہو گئے۔ تو جب 2006 اور 2008 اور 2005 اور 4 کا ماڈل آپ کے سامنے ہے تو اس کو امپلیمنٹ کر دو۔ 1 سال میں ہماری بات غلط ہو تو ٹرائل بیسس پہ آپ کو کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کا ٹیکس کلیکشن بڑھے گا۔ آپ کی تجویز کیا ہے؟ کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں سے زیادہ ٹیکس کلیکشن کی جا سکتی ہے جو ابھی تک ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے؟ دیکھیں، ٹیکس نیٹ میں مڈل مین نہیں ہے۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں 2025 کی اور 2024 کی۔ 2024-25 میں اگر آپ فرٹیلائزر کی پرائز اٹھائیں گے تو 2400 روپے پرائز تھی۔ 2400 والی فرٹیلائزر فارمر کو 5000 کی ملی، اور 5000 روپے میں جو 2400 روپے سے 2600 روپے ہے نا، اس پہ کسی کو ٹکا ٹیکس نہیں دینا پڑا۔ ٹھیک ہے، پھر گورنمنٹ نے اس کو چینج کیا اور اب 4400 روپے ہو گئی ہے۔ تو اب کوئی بلیک مارکیٹنگ ہوگی بھی تو 200-400 روپے کی ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس ٹائم پہ کیا ہوا، ہم نے فارمرز کو یوریا مہنگی کر دی، ڈیپ مہنگی کر دی، بجلی مہنگی کر دی، پانی مہنگا کر دیا، اور جو کراپ کا وعدہ کیا تھا کہ ہم 4000 روپے میں گندم خریدیں گے، وہ آپ نے اٹھائی نہیں۔ اب وہ فارمر بڑا تو ہوگا، لیکن جو چھوٹا فارمر ہے اس کو 2000 روپے میں ویٹ بیچنی پڑی۔ اگر اس کی کاسٹ ہی 3000 روپے تھی تو آپ نے تو اس کو قرضے میں ڈال دیا۔ اب پورا سال اس کا تباہی میں نکلا۔ تو آپ ان لوگوں کو بچاؤ، ان لوگوں کے لیے پالیسی اچھی لاؤ، ان کو بچانا ہے۔ 18% جی ایس ٹی بھی ختم کیا جانا، یہی نا میں کہتا ہوں، آپ کو ایک پالیسی ایسی لانی ہے کہ کوئی عام چھوٹا آدمی اس سے افیکٹ نہ ہو، اور ہمارے پاس ایسے ایکسپرٹ ہیں، ایسی پالیسی ہم لا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں لا سکتے۔ ایک کمنٹ کیجیے گا پھر ہم بریک پہ جائیں گے۔ پھر مجبوریاں کیا ہیں اس حکومت کی؟ اس حکومت کی مجبوری یہ ہے کہ بزنس مین سے ملے، اسٹیک ہولڈر سے ملنا اچھی بات ہے، لیکن ڈیسیزن ملک کے انٹرسٹ میں لیں۔ چند لوگ پاورفل ہیں، اپنے ڈیسیزن منوا لیتے، اور کچھ لوگ ہیں ان کی ریچ نہیں ہے، اور جن کی ریچ نہیں ہے نا وہ بیچارے مارے جاتے ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ اگر میں آپ کے پاس آتا ہوں اور جو نہیں آ سکتا ان میں کوئی بھی وہ بالکل یہ ایک جیسا آپ نے برتاؤ رکھنا ہے۔ آپ ایک ایسی پالیسی بنائیں کہ عام عوام افیکٹ نہ ہو۔ پیسے جو کما رہا ہے ٹیکس اسی کو ہونا چاہیے، جو گنوا رہا ہے اس کو ٹیکس نہیں دینا چاہیے۔ آپ مجھے خود بتا دیں، آپ اس وقت
आम आदमी की 2 लाख रुपए सैलरी है, आप मुझे बताइए क्या वो 25,000 रुपए टैक्स देता है, वो जायज है? उसका घर नहीं चल रहा 2 लाख रुपए में, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते 2 लाख में, उसके बच्चों को हेल्थ नहीं और मिल ये सकती। सिर्फ एक टैक्स है जो जीएसटी वो पे कर रहा है, जो हर किस्म का पेट्रोल टैक्स खरीदने वो में टैक्स दे दे रहा रहा है, बिजली खरीदने में टैक्स दे रहा है, वो अलग सैलरी है। टैक्स उस पर नहीं होना चाहिए। एक अमाउंट ऐसी हो 36 लाख रुपए टैक्स फ्री होना चाहिए 36 लाख रुपए साल का। अच्छा, 3 लाख रुपए एवरेज तनख्वाह वालों के ऊपर जीरो टैक्स होना चाहिए। 36 लाख के ऊपर 36 लाख से लेके 72 लाख रुपए तक की इनकम वालों को 10% आप टैक्स करें। सही। 72 लाख से ऊपर वालों के ऊपर आप 20-15% करें। ये आप स्लेब बनानी पड़ेगी, लोगों को बचाना पड़ेगा। होता ये है कि ये लोग शोर मचाते हैं, इसका फायदा किसी और को हो जाता है, तो आप उनको रिलीफ ही दे दो ना। आपको पता है कि एक आदमी लाख रुपए कमा के टैक्स दे रहा है, वो तो क्राइम है, टैक्स लेना क्राइम है उसके ऊपर। लेकिन अगर ऐसा किया जाएगा फिर ऑल्टरनेटिव्स एफवीआर को निकालने पड़ेंगे जहां से ये टैक्स उनको पूरा करना पड़ेगा। 1 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट लगेगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। जितने एफबीआर के पावर कम होंगे, जितने लोगों की खुशहाली होगी, ये कलेक्शन भी तो यही करते हैं ना, लाख रुपए सैलरी वाले धंधा भी यही करते हैं, ये आपको ज्यादा कमा के देंगे। ये बेचारे नौकरी पैसा लोग घर ही नहीं पहुंच पाते, रात को सोते नहीं है, दिन को भी बेचारे रात नींद पूरी नहीं होती है कि मेरा घर का क्या होगा, तो वो क्या काम करके देगा आपको? उसको ज़हनी सुकून चाहिए, और जब सुकून मिलेगा तो वो काम ज्यादा करेगा, उससे प्रोग्रेस ज्यादा होगी। हम लोग क्या करते हैं, हम उन लोगों को जो हमको कमा के देने वाले हैं उनको ही मार देते हैं। अकील करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक है वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अकील करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकील साहब, रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसकी भी बहुत सारी मुश्किलात हैं और रियल एस्टेट के साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी हैं। कहा जाता है तकरीबन 40 से 50 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो रियल एस्टेट के साथ जुड़ी हैं। रियल एस्टेट इस वक्त कहाँ खड़ी है? देखें, रियल एस्टेट बड़े अरसे के बाद कुछ बेहतरी की तरफ गई है। काफी लंबे अरसे से दबाव का शिकार थी, लेकिन उसमें खामियां भी थी। खामियां ये थी कि आपको नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, उससे आप एडवांस इनकम टैक्स लेते हैं। आप मुझे एक बात बता दें, जो अपना रिटर्न जमा नहीं कराता वो एडवांस टैक्स एडजस्टमेंट कहां से लेगा? तो ये क्या है? पॉलिसी का भुगतान, कि आपने गलत पॉलिसी बनाई है। आप लोकल से जो लेना है जरूर ले, लेकिन एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी से एडवांस टैक्स क्यों ले रहे हैं? सही। तो हम ये कहते हैं जो हर्डल्स है वो दूर करें, टैक्स जरूर ले, आप छोड़े किसी को भी, क्योंकि आपके पास गुंजाइश नहीं है रिलीफ देने की। सुपर टैक्स स्लोली आपको कम करना चाहिए, लेकिन टैक्स नेट बढ़ा के, और टैक्स नेट बढ़ाने का तरीका यही है कि आप एफबीआर के पावर कम करें। ये मैं गारंटी देता हूं, जितने पावर कम होंगे उतना टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ना बढ़े, एफबीआर की पावर कम की जाए, पावर कम करनी पड़ेगी। खलीजी ममालिक में जो क्राइसिस हमने देखे उसके बाद ये बात की गई, रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है कि वहाँ की इन्वेस्टमेंट यहाँ लाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर अभी आपने कुछ देर पहले जो बात की, जो सारे टैक्सेशन के मसाइल बताएं, कॉर्पोरेट टैक्स है, सुपर टैक्स है, उसमें फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि एफडीआई हमारे यहाँ बढ़ेगी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, ये नहीं कि नहीं बढ़ सकती। अच्छी पॉलिसी देंगे, हमारा टैक्स नेट बढ़ेगा, चोरी कम होगी। जब चोरी कम होगी और टैक्स बढ़ेगा तो लोगों का कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, डेफिसिट कम होगा, आईएमएफ के आपके रिमार्क्स अच्छे होंगे और आईएमएफ से आप बाहर भी निकल सकते हो। आज आप ये देखें कि दुबई वाला इवेंट हुआ, मिडिल ईस्ट का इवेंट हुआ, आप ये देखें आपकी रियल एस्टेट मार्केट एकदम आसमान पे चली गई। उसकी वजह यह है कि लोगों को अब ये एहसास हो गया है कि अब उन कंट्रियों में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पैसा यहाँ ज्यादा सिक्योर है, जहां वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। अब आपको उन कंट्रियों में इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहले तो न्यूक्लियर कंट्री होनी चाहिए, क्योंकि उसकी तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। तो सबसे बड़ी प्रोटेक्शन आपको है कि आपका मुल्क सेफ है। तो ये एहसास अब लोगों को हुआ है, और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का रुख कर रहे लोग। पिछले दिनों बहुत इन्वेस्टमेंट आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शायद अभी नहीं आई है,
लेकिन अगर आप देखें तो जो हमारा पैसा पाकिस्तान से जा रहा था वो आना शुरू हो गया है। अच्छा, और उसकी वजह से आपकी मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुई है। फिर आप कराची में आप देखें उठा के कि इंडस्ट्रियां कितनी लग रही हैं। लोग कह रहे हैं कुछ काम नहीं हो रहा, ये गलत कह रहे हैं। नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं नई कराची में। इंडस्ट्री बहुत लगी है। और किन किन सेक्टर्स की ज्यादातर? हर सेक्टर में, टायर एंड ट्यूब में, ऑटो कार में, ये आपके मोटर बाइक के प्लांट लग रहे हैं। आप देखें बेतासा प्लांट लग रहे हैं, और ये पाकिस्तान के लिए गुड साइन। फिर आपकी माइनिंग में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है, फिर लाइव स्टॉक में, डेयरी में, एग्रीकल्चर में, कार्बन क्रेडिट में। ये बड़े अरसे के बाद हमने ये इन्वेस्टमेंट देखी, और इंशाअल्लाह ताला हम इन लोगों को प्रमोट करें, हम इनके ऊपर कोई बर्डन ना डालें, हम उनके ऊपर अगर कोई FBR वगैरह सही तरह इनको हैंडल करेंगे तो उसकी वजह से इन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा तो दूसरे लोग भी पाकिस्तान का रुख करेंगे। आपको इस जंग से नुकसान भी हुआ है और अपॉर्चुनिटी भी मिली है। अपॉर्चुनिटी ये मिली है कि लोगों को अब ये एहसास हो गया है कि हमें उस कंट्री में पैसे लगाने जो महफूज हो, जिसके पास अफवाज है। और हमारी अफवाज पाकिस्तान माशाल्लाह दुनिया की बहुत बड़ी अफवाजों में एक है, जो अपने मुल्क का दिफा भी कर सकती है और अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इस वक्त अगर फर्दर हमें कुछ करने का है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। इसमें अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान बहुत आगे, वो भी अब दिखाई दे रही है इंशाअल्लाह। अकील साहब, कराची की तरफ आते हैं, क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। कराची के लिए कई बार बजट्स में मेगा प्रोजेक्ट्स का जिक्र भी हुआ, ऐलान भी हुआ, उसके बाद भी हम देखते हैं कराची में कोई बेहतरी एज सच आती नहीं है। खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बेसिक मसाइल हैं कराची के, वो हल नहीं हो पाते हैं। कराची का मसला इस वक्त है क्या? देखिए, कराची का मसला कराची पोर्ट है। कराची पोर्ट से जो लोड जा रहा है वो 100% बाई रोड जा रहा है। आपको उसको बाई ट्रेन लेके जाना पड़ेगा, आपको ट्रेनें चलानी पड़ेगी। कराची की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतना बड़ा लोड उठा ले। आपको पूरी दुनिया के कार्गो बाई रोड नहीं जाते, बाई ट्रेन जाते। बाई ट्रेन जो कार्गो जाता है उसकी कॉस्ट कम होती है, बाय रोड जो जाता है उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, और फ्यूल ही बचेगा हमारा। तो फ्यूल बचेगा, लेकिन उधर भी इस्तेमाल होगा, लेकिन आपकी कॉस्ट नीचे आएगी। कम से कम 30 to 40% आपकी कॉस्ट नीचे आएगी। तो आप क्या चाहेंगे? कॉस्ट नीचे लाएंगे ना। फिर आपके एक्सीडेंट होते हैं, आप सिटी के अंदर से जाते हैं, अब केमारी से ट्रक निकलेंगे तो केमारी से फिर वो आपके कुलाची रोड से वो सनसेट बुलेवार्ड वहां से निकलते हैं, आपकी ट्रैफिक इशू बन जाते हैं, आपकी रोडें टूट जाती हैं, सड़कों का नुकसान अलग हो रहा है। अगर आप वफाक की जिम्मेदारी बनती है कि ये पोर्ट की जो इनकम है उसमें से 1/3 इनकम कराची की ऊपर खर्च करे, सिंध गवर्नमेंट भी उसमें हिस्सा डाले, तो ये जब सब मिलजुल के, कराची अब बहुत बड़ा हो गया है। कराची की पॉपुलेशन हमेशा गलत बताई गई है, आप पॉपुलेशन कराची की सही बताए। कराची सिंध का आधा हिस्सा है, 4 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। तो अभी भी दादोशुमार तो कहते हैं कि 2.25 करोड़ से ऊपर लोग नहीं है। हाँ, 2.25 करोड़ से ऊपर लोग नहीं है, दादोशुमार तो ये बताते हैं। अभी तो ये 2 करोड़ से तो ऊपर चले गए, लेकिन है ज्यादा लोग हैं। तो अब हम किसी एक को ब्लेम दे मुनासिब नहीं है, इसमें हम सब ब्लेम होते हैं। सबको मिलजुल के रास्ते दिखाने चाहिए। जो काम कर रहा है उसको काम करने दो, उसको क्रिटिसाइज करके हम उसको और मुश्किल में ना डालें। आप आए, हम आए, जमात इस्लामी बैठे, इनके साथ बैठ के रास्ते बताएं ताकि काम बढ़े। काम को रोकने की कोशिश करते हैं हम। जो काम हो रहा है कराची में, ये नहीं बिल्कुल काम नहीं हो रहा, कुछ जगहों पे अच्छे काम हुए हैं, तो अच्छे कामों की तारीफ भी होनी चाहिए। जब आप तारीफ करोगे तो जो रह गया वो भी ठीक हो जाएगी। सही। तो मेरा मकसद कहने का है कि कराची पोर्ट सिटी है और वफाक को पोर्ट से बहुत पैसा आता है। और अब तो आप देखें ग्वादर पोर्ट चल पड़ी है माशाल्लाह, वहाँ भी जहाजों पे जहाज लग रहे हैं। जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सिक्योर ग्वादर पोर्ट है, तो यहाँ भी आपके ट्रैफिक बहुत बढ़ेगा, वहाँ भी इनकम आपकी बहुत बढ़ेगी। उस इनकम को भी हम चाहते हैं कि आप बलूचिस्तान के ऊपर खर्च करें ताकि वहाँ के लोगों को भी
اس کا فائدہ پہنچے. لیکن بجٹ میں کراچی کے لیے کوئی مخصوص یا خصوصی طور پر فنڈ رکھنے چاہیے؟ دیکھیں بجٹ میں وفاق رکھ سکتی ہے لیکن وفاق کے پاس ہے کیا؟ ہم ایکسپیکٹیشن تو رکھیں لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ان کے پاس ہے کیا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کوئی ایسا راستہ ہو کہ ہم ان کے پاس کچھ پیسہ ہے. وفاق تو ویسے ہی ڈیفیسٹ میں چل رہا ہے, اسی لیے میں نے کہا کہ پورٹ کی انکم کا کوئی حصہ کراچی کے اوپر خرچ کر دیں. اور جو NFC کے تھرو صوبوں کو پیسہ مل رہا ہے یا سندھ کو مل رہا ہے وہ ناکافی ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں NFC سے جو پیسہ مل رہا ہے اس میں تو وہ اپنا پیسہ دے رہے ہیں نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر پورٹ سے جو انکم ہو رہی ہے اس کا بول دیں کہ بھائی یہ کراچی کے انفراسٹرکچر کے لیے ہم ہر سال 100 ارب روپے دیں گے, تو وہ ایکسٹرا ہمیں ریلیف مل جائے گا اور یہ خرچ ہوگا. اگر ہم سندھ گورنمنٹ کے اوپر بات کریں گے تو وہ کہیں گے ہم آلریڈی پیسہ خرچ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں چاروں صوبوں کو چاہیے کہ پورٹ سٹی کا خیال رکھیں اور وفاق کو چاہیے کہ سب مل جل کے اگر اس کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں گے تو ان کو پے بیک ہوگا.